everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग की अल्फ़ाबेट टेस्ट आपका जो सीरीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे एंड होपफुली विल एंड अप दिस अल्फ़ाबेट टेस्ट इन दिस क्लास ओनली। एंड दिस इज जो रीजनिंग की अगर हम क्लास बात करते हैं तो रीजनिंग की हम 131th क्लास पे हैं। ऑलरेडी हमने 130th क्लासेस कर लिया है। अगर हम क्लासेस की बात करें कि 130th क्लासेस में जो हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं, सो फर्स्ट वी हैड कवर अप द एनालॉजी पार्ट। एनालॉजी हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है। उसके बाद हमने सीरीज़ कंप्लीशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन किया है। उसके बाद हमने सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग किया है, डायरेक्शन सेल्स टेस्ट किया है, लॉजिकल वेन डायग्राम किया है, पजल टेस्ट किया है। उसके हिसाब से अब हम जो कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट टेस्ट है जो कि 10th टॉपिक है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th टॉपिक है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। होपफुली आज के क्लास में अगर ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो वी विल एंड अप दिस इन दिस क्लास ओनली। ये 131th क्लास है आपका रीजनिंग का। अब बात करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन फॉर द सेशन फर्स्ट वी हैव 2 5 6 दिस इज 256th question of the session, and the first question for the session, the words we have is T P S L O I. T stands for 1, P stands for 2, S stands for 3, L stands for 4, O stands for 5, L stands for 6. Yeah. So here T stands for 1, P stands for 2, S stands for 3, L stands for 4, O stands for 5, and I stand for 6, as I told you. Now gone through with the options here. Option is 263154, B option है 462531, and C option है 254361. So we'll just write it down the value as a sign in this letters, and then accordingly then we'll think of it कि कौन सा letter existence में है कि नहीं, और फिर according to that we will be put the right answer here. तो सेकेंड यहाँ पर लेटर जो है हमारा वो P है। सिक्स्थ लेटर वी हैव I, third letter we have S, so first letter will we have a T here, then fifth letter we have here is O, and then a fourth letter will be L. So that is pistol. Pistol is an existing one. I think everyone had heard about this. फोर्थ सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं बिकॉज हम ऐसे ही नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है उससे ज़्यादा एग्जिस्टिंग यूजेबल वर्ड मिल जाए, तो उसके लिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू गो थ्रू विद ईच एंड एवरी ऑप्शन हियर, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार में हमें ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में आंसर मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो फोर विल बी हैविंग एल हियर, सिक्स विल बी आई, second will be P, and fifth will be O, and third will be S here, and the first will be this. So post, this is not existing. Second word will be the P here, fifth will be O, and fourth will be L here, third O will be S, and sixth O will be here is I, and then we have first, that is your T, that is Polsit. It's also not existing. This is also not existing, so this the first one will be the right answer, that is pistol here, and the options we have 263154. Now moving on with the next question that we have here, 257th question, that we have MFIANA, that is methane, and M stands for 1, F stands for 2, FII stands for 3, A stands for 4, and then N stands for 5, and E stands for 6 here. Now gone through with the options here. Option A is 162345, B option is 241356, and C option is 562314. First will be here M, then 6 will be E, second will be F, then third O will be I, fourth O will be A, and fifth O will be here N. That is Mephian. I don't think so it is existing. नेक्स्ट वर्ड वी विल गो थ्रू विद एफ, इसके बाद फोर्थ वर्ड है आपका ए, फर्स्ट वर्ड है एम, देन थर्ड वर्ड है आपका आई, फिफ्थ वर्ड है एन, और सिक्स वर्ड है ई, दैट इज फेमीन. फेमीन इज अ वर्ड दैट इज existing here. And now gone through with the C option, that we have your 5, that is your N, sixth word will be the E, second word will be the F here, then third will be the I, and then of course first will be the M, and fourth will be the A here, that is Nephemina. Though this is also not existing, the option B will be the right answer, that is famine. And the options in the word letters number we have 2 4 1 3 5 6. Now moving on with the next question that we have here, 258th question of the session. The words we have NAEHLD. N stands for 1, A stands for 2, E stands for 3, H stands for 4, L stands for 5, and D stands for 6. The options we have is 264351,
B option is 4365221. C option is 421653. So now gone through with the options here. Then A is 2 is A. Hello everyone. This is the next question, that is 252, 258 question, and the words we have NAEHLD here. So N stands for A1, A stands for 2, E stands for 3, H stands for 4, L stands for 5, and D stands for 6 here. सो 2 6 जैसा कि हम नंबर कर रहे थे, तो 6 वाला जो आपका है दैट इज योर डी हियर, फोर्थ वाला आपका एच है, थर्ड वाला ई है, 5 वाला आपका एल है, 1 वाला आपका एन है, दैट इज एडल एन. तो आई थिंक डोंट थिंक सो ये आपका वर्ड एग्जिस्ट करता है. एंड देन वी हैव 4 3 2, तो फोर्थ हमारा है एच, देन वी हैव 3 ई, सिक्स आपका डी है, देन फिफ्थ आपका एल है, देन सेकेंड विल बी ए, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट विल बी दिस. हेडलैंड इज नॉट अ वर्ड. Then fourth वाले के लिए हम बात करते हैं, तो then we have H here, then we have A, then we have N, then we have D, then we have L, and then we have your E. So that is handle. Handle is word that is existing, and I think you all also know. So that is option C will be the right answer. That is 421653 here. Now moving on with the next question, that is your question number 259 here. ETCKOP. E stands for 1, T stands for 2, C stands for 3, K stands for 4, O stands for 5, and P stands for 6 here. Now move on with the options here. 6 5 3 4 1 2 3 1 4 5 6 2 and 2 1 6 5 3 2 4. So now gone through with the words here, and we will just write the words here, letters in the form that it forms is that P, उसके बाद है O, then we have C, and then we have K, and then we have E, and then we have T here. That is pocket, and I think all of you know that pocket is existing word here. The third word के B options के लिए आता है. C is C, then E, then we have K, then we have O, then we have P, and then we have T here. This is secopt, and this is not the word that is existing here. And then next third option के लिए अगर हम बात करते हैं, the second word we have is T, first word is E, then sixth word will be the P here, fifth will be the O, and then a third word जो आपका है that is C, and then fourth word जो आपका है that is K here. So that is tepak, and tepak is also not the word that is existing here. So this the pocket word will be existing here, and that option A will be the right answer. That is 653412 here. Now then moving on to the next word that we have here, 260th word, and the words we have ELGNIM. E stands for 1, L stands for 2, G stands for 3, N stands for 4, I stands for 5, and 6 stands for M here. The options we have here is 312654, 654321, and 653214. So let's gone through with the words here that we have here. 3 आपका है G, then first will be the E here, second will be the L, and sixth will be the M here, fifth will be the I, and fourth will be the N here. The Galvin is not that word that is existing here. B option के लिए बात करती हूँ. Sixth will be the M, fifth will be the I, fourth will be the N, third will be the G, and L will be the second word, and E will be the first word that is mingle, and mingle is the word that is existing here. Now this is the C options. We have 6 will be M, then fifth will be the I, third will be the G, second will be the L, first will be the E, and the fourth will be the N here. That is Miglen. This is not the word that is existing, so the option B will be the right answer. That we have is 654321, that is mingle here. Now moving on to the next question, that we have a 261th question, and the question we have is DAIMEN. D stands for 1, A stands for 2, I stands for 3, M stands for 4, E stands for 5, and N stands for 6 here. Gone through with the options here. So 154236, 451236, 423156. So just gone through with the letters here. A1 stands for D here, fifth stands for E here, fourth stands for M here, second आपका A है, third आपका I है, और sixth आपका that is N here. That is a domain. The B one we have is M, and then we have E, then we have D,
then we have A, and then we have I, and then of course we have N here, that is mid-N. The third word we have is fourth वाला आपका है M, फिर आपका है A, and then we have I, and then we have a D here, and then we have E, and then we have N here. So that is Madden. Madden is a word that is existing, and that option C will be the right answer. 4, 2, 3, 1, 5, 6 here. Okay, now moving on with the next word that we have to discuss here is the next word, that is your 261th question of the session. 262th question of the session that we have to discuss here is 262th question we have is RESTLU. So R stands for 1, E stands for 2, N stands for 3, T stands for 4, 5, L stands for 5, and U stands for 6 here. So we'll just have an option here that we have 5, 6, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 5, and 4, 5, 3, 2, 6, 1. This is the options we have to just arrange the letters in an order. 5 आपका L है, 6 आपका U है, then we have 3, that is your S here, then 4 है आपका T, and then 1 है आपका R, and then E. Last this is the first word. The second word की अगर हम बात करते हैं तो B option जो है आपका, that is your 3 is S, and then 4th आपका है T, then 6th आपका है U, and then first आपका जो है वो R है, and second will be the E here, and the 5th will be the here L. So this is true स्टूरल, दिस इज नॉट दैट राइट आंसर. सी ऑप्शन की बात करती हूँ, द फोर्थ वाला टी है, फिफ्थ वाला एल है, एंड यू वाला आपका एस है. फिर उसके बाद आपका सेकेंड वर्ड है, दैट इज ई हियर. सिक्स इज यू, एंड दिस इज आर, तो दैट इज टी एल एस ई यू आर. तो ये वाला तो होगा ही नहीं, देन लास्ट विल बी द राइट आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन ए, एंड दैट इज 5, 6, 3, 4, 1, 2. Now moving on to the next question, 263 here. The questions we have is which one word can be formed from the following letters. इस following letters में से आपका कौन सा फॉर्म बन रहा है, वर्ड कौन सा बन रहा है. ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. The words of series we have A, A, D, E, F, G, R, S, U. ऑप्शंस की बात करते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैग्नेशन, सेफ गार्ड, एंड द ग्रैंडसन हियर. सो अब इसमें से हमें कौन सा वर्ड्स इन फॉर्म्स में बनेगा. सो लेट्स गॉन थ्रू द वर्ड हियर विच कैन बी फॉर्म्ड. तो कौन कैन बी फॉर्म्ड का मतलब है कि कौन से बनेगा. तो एस है यहाँ पे, देखेंगे एस यहाँ पे है, वॉस टी है, टी यहाँ पे नहीं है, तो ऑफकोर्स ये नहीं बनेगा. तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं, आगे फॉलो अप करने का फ़ायदा ही नहीं है कि ये और आगे बढ़ेंगे वर्ड्स के नहीं, क्योंकि टी मिल ही नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग हियर. Okay, now moving on with the second B option that we have to carry out. So for the B option that safeguard है और आपका grandson है, तो let's go through the safeguard here. S देखते हैं, S है या है, फिर A आएगा, A देखेंगे है, F है, फिर F भी है, ठीक है, E है, E भी है, G है, let's see, G भी है, U भी है, A भी है, फिर R भी है, and then we D भी. तो सेफगार्ड तो हो रहा है, इसका मतलब ये तो होगा, बट वी हैव टू चेक दिस ऑल्सो. सो G है, R भी है, A भी है, एन नहीं है, एन ए डी ई एफ जी आर एस यू है, तो ये एन नहीं है. तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एन नहीं है और इसमें टी भी नहीं है. आगे तो मैंने फॉलोअप ही नहीं किया कि वो आगे होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एन 2 बार आ रहा है, तो होएगा ही नहीं, एक बार में भी नहीं होता. यहाँ पे भी टी 2 बार में आ रहा है, तो वैसी बात है ये भी एक्सिस्टिंग नहीं करेगा. तो इसका मतलब है जो आंसर हमारा होगा, जो कि CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट विल बी द सेफगार्ड हियर. Now moving on with the next one, that we have your 264th question of the session. Which one word can be formed from the following letters. अब आपको बताना है कौन सा can be formed and cannot be formed पूछा जा सकता है. तो आप हर टाइम कॉन्फिडेंट मत होना कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं और सीधे करना शुरू कर दिया. कभी कभी कैन बी फॉर्म्ड भी पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड भी पूछते हैं. तो बच्चे क्या होते हैं, जब जिसे उन्होंने ज़्यादा टाइप के कैन बी फॉर्म क्वेश्चन पढ़े होंगे, कैन नॉट बी फॉर्म वो पढ़ते ही नहीं और डायरेक्टली कैन बी फॉर्म में घुस जाते हैं, और उसके बाद ऑलरेडी वो नहीं कर पाते उस तरह से. तो इसलिए प्लीज़ वो उतना ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे. एंड ऑब्वियसली बात है, एंड कैन नॉट बी फॉर्म के भी क्वेश्चन होते हैं. तो कुछ बच्चे होते हैं कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म के क्वेश्चन कर लेते हैं, बट उनको कैन बी फॉर्म का उनको इतना होता नहीं है. वो क्वेश्चन जैसे ही बस देखते अरे मुझे समझ में आ गया तो मैं कर चुका हूँ, इस तरह से वो मूव ऑन करते हैं और फिर वो कंप्लीट भी नहीं कर पाते उसको.
तो यही केसेस होते हैं जो आपके रीजनिंग में कंपटीशन में आपको लैक करता है, और ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी रैंक नहीं आती, आपका सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की फिर भी नहीं हुआ। तो वो इसी वजह से नहीं होता है बेटा कि वो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है, इस वजह से भी नहीं होती है। और थोड़ा सा आपको ये कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आ गया, तो वो भी आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है, इस वजह से नहीं होता है। बट डोंट वरी, अभी आप कंपटीशन दे रहे हो, अभी तो आप स्टेज 1 पे हो। जब आप फ्यूचर पे की तरफ मूव ऑन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस करो अपना 100%, तो रिजल्ट कुछ भी आता है, नो मैटर्स। 264 which one word can be formed from the following letters, ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। The cities we have A B C I L L N O R T. So here we have to find out the can be formed, मतलब जो बन सकते हैं words. So word options है collapsible, collapsible and locomotive and collaboration. तो let's go through with that here. C है तो let's go on 3C here, हाँ C है, O भी है, L ओके 1 L है, सेकेंड L भी है, ए भी है, 2 L हो गए, नहीं अभी एक L हुआ, सॉरी। देन P के बारे में बात करेंगे तो वी डोंट हैव अ P हियर, A B C I L L एंड देन N O R T, तो P नहीं है तो फिर आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। नेक्स्ट सेकेंड वर्ड के लिए देखते हैं, L हमारा है, यस है, O भी है, C भी है, O देन अगेन O भी है, फिर M, फिर M A B C I L L M O R T, तो M है ही नहीं, तो फिर आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इंश्योर वो यही होने वाला है, क्योंकि नन ऑफ दीज वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे दिया है, तो ये होगा ही होगा, बट वी डोंट गो ऑन थ्रू विद अ कॉन्फिडेंट लेवल। पहले इसको भी मैच आउट करेंगे। सो कोलैबोरेशन है, सो सी देखेंगे, सी है, ओके, ओ भी है, एल भी है, फिर अगेन एल है, ए देन वी हैव ए, बी वी हैव हेयर, ओ फिर ओ भी है, सेकेंड ओ, एंड देन आर आपका आर है, ए देन ए है, अगेन ए है, 2 ए हो गए आपके, टी आपका है, टी है, ओके, एंड देन उसके बाद फिर आई भी है, देन अगेन ओ है, एक दो तीसरा ओ हो गया, ओके, एन देन फिर वी हैव एन। सो कोलैबोरेशन है, इसका मतलब है सी ऑप्शन, दैट इज द कोलैबोरेशन विल बी द राइट आंसर। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द CBI question paper here. Now moving on to the next one that we have here, 265 question. The question we have is the letters of the word NUMKEMP, ये आपका NUMKIPPR इन दिस ऑर्डर, ये डिस ऑर्डर में है। इफ दे आर अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, अगर इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं नमकीन को, द नेम ऑफ द वेजिटेबल इज फॉर्म। इस नमकीन को अगर हम एक प्रॉपर ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि अभी तो ये डिसऑर्डर में है, बट इसको अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में करेंगे तो वो एक वेजिटेबल का नाम बनाएगा। वेजिटेबल का नाम तो ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द ऑफ नो दिस, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म। तो आपको बताना है कौन सा लास्ट लेटर होगा जो ये वेजिटेबल का नाम बनाने के बाद, ऑर्डर में बनाने के बाद, वो कौन सा वेजिटेबल होगा, उसका लास्ट जो वर्ड होगा, लास्ट लेटर जो होगा वो उस वर्ड का वो क्या होगा। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है एम, और ऑप्शन के है सी है आपका के। तो अब इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा सच मूवमेंट करना नहीं है, वो तो आप ऑलरेडी गॉन थ्रू करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अब नेम ऑफ वेजिटेबल, ये नमकीन में क्या बनाएगा, तो नमकीन में भाई, नमकीन से हमें दिख रहा है ये पंपकिन बनाएगा, PUMPKIN। अब यहाँ पे मैच कर लो, पी है, यू है, एम है, पी है, अगेन पी है, के है, आई है, एन है, तो पंपकिन बनाएगा। और पंपकिन का लास्ट लेटर जो है वो आपका एन है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी एन हियर। Now moving on to the next question, that we have a question number 266 here. And the question we have, if by arranging the letter of the word NABMODI, that is NABMODINT, तो नेम्बोडिमेंट जो आपका वर्ड है, उसके बाद द नेम ऑफ द गेम इज फॉर्म्ड। अब इसको अगर आप अरेंज करते हो तो आपका एक गेम का वर्ड फॉर्म करता है। व्हाट आर द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड सो फॉर्म। पहले तो इससे भाई गेम का वो बना लो नाम कि क्या सा बनेगा, उसके बाद फिर आप फर्स्ट और लास्ट तो ऑब्वियस सी बात है बना लोगे। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और अगर मैं इसकी बात करूँ नेम जो गेम बनेगा, तो यहाँ पे देखो बी है, ए है, डी है, एम है, आई है, एन है, टी है, ओ है, एन है, तो बैडमिंटन बनेगा वर्ड। जो वर्ड बनेगा दैट विल बी द बैडमिंटन हियर, बैडमिंटन। देखो बच्चे
शायद गेस भी कर लेंगे बैडमिंटन बनेगा, बट भाई जिनको स्पेलिंग नहीं आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्रिएट कर सकते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे पहला लेटर है आपका बी और सेकेंड लास्ट लेटर आपका जो है वो एन है, तो बी एन विल बी द राइट आंसर। लेट्स गो थ्रू विद ऑप्शन हियर। ऑप्शन इज बी टी, बी एन एंड एन डी, तो ऑफ कोर्स बी एन विल बी द राइट आंसर। पहला आपका बी लेटर है और लास्ट आपका एन लेटर है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। Now moving on with the next question, that is your question number 267th of the session. 267th question, if a meaningful word can be formed by rearranging the letter USCALA, USCLA उसका अलग जैसा वर्ड्स है, तो उसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो एक मीनिंगफुल आपका वर्ड बनेगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म एंड द आंसर, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड द आंसर इज एक्स। अगर कोई वर्ड नहीं बनाता है तो ऑब्वियसली बात है फिर उसका आंसर जो होगा वो एक्स होगा आपका। सो हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस, the word is here with forming this word will be the casual here, CASUAL, देख सकते हैं आप CASUAL, कैजुअल वर्ड आएगा आपका, और इसके कैजुअल वर्ड आने पे जो फर्स्ट लेटर है आपका वो आपका लेटर सी होगा। अब इन्होंने क्या बोला था कि अगर बनता है तो उसका फर्स्ट लेटर बताओ, बट अगर नहीं बनता है, मान लो कोई वर्ड ही ना बनता, तो फिर आप एक्स लिख लेते। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज ए एंड ऑप्शन बी इज एस एंड ऑप्शन सी इज सी, and then option C will be the right answer, that is C here, and that is the first letter of this question. Next question, that is the question number 268. If it is possible to form a word with the first, fourth, seventh, 11th letter of the word super flawless, write the first letter of the word, otherwise X will be the answer। बोला है ऑलरेडी, उन्होंने बोला है कि आप इस जो वर्ड सुपर फ्लॉलेस वर्ड दिया है इसका फर्स्ट लेटर ले लो, फोर्थ लेटर ले लो, सेवन्थ लेटर ले लो, 11th लेटर ले लो, उससे फिर एक नया वर्ड बनाओ। अगर वो बना है, पॉसिबल है, तो उसका फर्स्ट लेटर बताओ। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं पॉसिबल है, तो फिर उसका जो आंसर होगा वो एक्स होगा। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम जस्ट गॉन थ्रू विद दिस ओनली। फर्स्ट आपका है एस, इस फोर्थ वाला बात करें तो ई है, सेवन्थ की बात करते हैं फिफ्थ सिक्स एंड देन सेवन्थ इज एल, 11th की बात करते हैं तो 8 9 10 एंड देन वी हैव 11 एस, अगेन एस। तो हमारे पास फर्स्ट एस एस ई एल एंड एस, एस ई एल एंड एस, देन द फोर्थ एंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ एंड द सेवंथ एंड द 11th letters of the word superfluous are S E L S respectively, so the word that is formed is L है, E है, S and S, तो we can find it out the word less here, L E डबल एस, लेस। तो ये आपको भी पता है, लेस का मतलब होता है कम, और वही हमारा वर्ड बन रहा है एक्चुअली में। अगर नहीं बन रहा होता तो आंसर विल बी द एक्स, बट क्योंकि बन रहा है तो दैट विल बी द राइट आंसर। अब बोला गया फर्स्ट लेटर बताओ इसका, तो फर्स्ट लेटर भाई एल है, ऑप्शन ए है एल, बी है ओ एंड सी है ई, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज एल हेयर। Now moving on with the next one that we have here is your 269th question of the session, and the questions we have is, if you pick up from the following alphabet the sixth and the 14th letter, sixth or 14th letter from your right, and then pick up the fifth and 12th letter from your left and form a meaningful word, what will be the first word that of that word? तो आपको बात करना है कि अगर आप पिकअप करते हो फॉलोइंग अल्फ़ाबेट से, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपका उसका सिक्स्थ लेटर और 14th लेटर राइट से पकड़ो, और उसके बाद आप लेफ्ट में से फिफ्थ और 12th लेटर ले लो, और उसके बाद आप उसका एक वर्ड बनाओ। अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो आप उसका फर्स्ट लेटर बताओ वर्ड्स का। इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है उतना ईजी होगा नहीं, तो इसलिए भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है ई, बी इज एम एंड सी इज नन ऑफ दिस। तो इसलिए अब हम पहले लेंगे पहला फर्स्ट सिक्स और 14th लेटर लेंगे। तो अगर हम सिक्स और 14th लेटर की बात करते हैं राइट से, तो सिक्स लेटर 1 2 3 4 5 6, सिक्स लेटर मिला आपको, यू मिला। अब 14th लेटर देखते, सिक्स है, सेवन्थ 8 9 10 11 12 13 14, 14th लेटर मिल गया हमें एम, सिक्स लेटर मिला आपको यू और 14th लेटर मिला आपको एम मिला। अब क्या बोला गया है दैट फ्रॉम योर राइट एंड पिक अप द फिफ्थ एंड 12th लेटर, सॉरी 20th लेटर, फिफ्थ और 20th लेटर आपको लेना है फ्रॉम योर लेफ्ट। तो लेफ्ट 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर विल बी द ई, एंड आपको कौन सा लेना है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेना है 20th, सिक्स्थ सेवन्थ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
तो 20th आपका लेटर जो होगा दैट विल बी हियर, दैट इज टी हियर. Okay, so clearly the fifth letter and the 20th letter we had taken, that is E and T, and your from the left, and of course the 14th and the 6th letter will be having as MU respectively, as from the right here. Clearly the word that is formed in between, जो हमें words मिलेंगे, M है, E है, T है और आपका U है, तो हमें इससे जो बनेगा वर्ड दैट इज म्यूट. म्यूट बन रहा है MUTE, म्यूट बन रहा है. अब इसका जो हमें क्या बताना था, दैट वी हैव टू टेल द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस. तो फर्स्ट लेटर आपका M है, ऑप्शन E है, M है, none of these है, then option B will be the right answer, that is M here. Okay, I think that is clear to you very well here. Now moving on to the next question, that we have your question number 278, and the question we have is, if with the third, fourth and the fifth, seventh and the 10th letter of the personality, a meaningful word will be formed, the first letter of the word in the answer. If no word is possible, then X will be the answer. अगर personality word से आप उसका थर्ड लेटर ले लो, फोर्थ लेटर ले लो, फिफ्थ लेटर ले लो, सेवन्थ लेटर ले लो, 10th लेटर ले लो, ओके, पर्सनालिटी वर्ड का, तो आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है. अगर बन रहा है तो फिर आपका उसको फर्स्ट का लेटर बताना है, अगर नहीं बन रहा है तो एक्स विल बी द आंसर हियर. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है टी, और ऑप्शन सी है ओ. तो लेट्स गो थ्रू विद द थर्ड लेटर. थर्ड लेटर क्या है आपका, 1 2 3, थर्ड लेटर है आर. फोर्थ लेटर की बात करते हैं, फोर्थ लेटर है एस, फिफ्थ लेटर इज एन, ओ सॉरी ओ, एंड द सिक्स सेवन्थ लेटर ए, सिक्स है ये, सेवन्थ लेटर विल बी ए. फिर 10th लेटर 8 9 10, 10th लेटर विल बी द टी हियर. तो हमको लेटर क्या मिल रहा है, दैट इज आर मिल रहा है, एस मिल रहा है, ओ मिल रहा है, एन मिल रहा है, ए मिल रहा है, सॉरी एन नहीं मिल रहा है, आर मिल रहा है, एस मिल रहा है, ओ मिल रहा है, एंड देन वी विल फाइंड इट आउट ए, एंड देन वी हैव टी. तो ये हमें आपके 5 लेटर्स मिल रहे हैं, RSOA. तो इसमें से जो वर्ड बनेगा, आर लेंगे, OAST, रोस्ट बन रहा है, ROAST, रोस्ट बन रहा है. तो रोस्ट विल बी द वर्ड दैट इज विल बी विद फाउंड विद इन दिस वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन. अगर नहीं बनता तो एक्स विल बी द राइट आंसर. तो इसका रोस्ट में जो पहला लेटर है दैट विल बी द आर, एंड द ऑप्शन आर विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज आर, बी इज टी, एंड सी इज ओ, देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज आर हियर. आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू, एंड हाउ यू विल डू दैट. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ और 10th लेटर दिया था एक वर्ड का, तो उसको हमने निकाला, कॉम्बाइन किया, उसे देखा कोई वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है. इससे बन रहा था तो हमने आंसर लिख दिया उसका फर्स्ट लेटर. अगर नहीं बन रहा होता तो विल राइट एज एक्स. बट यहाँ पे A to Z सीरीज दे सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं लेफ्ट से चलो भाई, राइट से चलो, जितने वर्ड्स पे है उसका कॉम्बिनेशन निकालो, उस कॉम्बिनेशन निकालने के बाद उसको सॉल्व करो. तो उस तरह से कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमने स्टेप के भी क्वेश्चन किए, स्टेप के भी क्वेश्चन किए, और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन किए. So you don't have to worry about that, but you also always have to do a practice what you had learned. Next, moving on to the next question, that is your question number 271th question of the session. Here we have 271th word, and the word question we have is, if it is possible to make a meaningful word with the third word, fifth word, eighth word, 10th word, letters of the word, distribute which of the following will be the third letter of, अभी तक फर्स्ट लेटर पूछ रहे थे हर एक का, बट अब पूछा गया थर्ड लेटर बताओ of the word. If no such word can be made, give X is the answer, and if more than one such word can be made, गिव M as the answer. तो बोला गया है कि यहाँ पे एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, उसका थर्ड वर्ड लो, फिफ्थ वर्ड लो, एट्थ वर्ड लो, 10th वर्ड लो, उसके हिसाब से वर्ड्स बनाओ. अगर नहीं बनता है तो फिर उसका थर्ड वर्ड बताना है. अगर नहीं बनता है वर्ड तो फिर आपका आंसर एक्स होगा. अगर एक से ज़्यादा बनता है तो फिर आप भैया उसका आप एम आंसर बोल सकते हो. ये क्वेश्चन आपका जो है वो बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज़ नॉट दैट मच ईजी एज यू कैन थिंक ऑफ इट. ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है एस, और ऑप्शन सी है आपका ई. और डिस्ट्रीब्यूट में हम पहले तो वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे. थर्ड वर्ड जो हमारा है वो हमारा एक एस है, एस विल बी देयर. फिफ्थ वर्ड जो है वो हमारा आर है, एंड उसके बाद एट्थ वर्ड की बात करते हैं, सिक्स सेवन्थ एंड देन एट वर्ड आपका यू है, एंड नाइन्थ छोड़ के टेंथ वर्ड भी ई है. तो वर्ड्स हमें जो मिले हैं वो मिले हैं एस, आर, यू एन ई. ये चार वर्ड हमको मिले हैं. अभी चार वर्ड से हमको बनाना है वर्ड, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, जिस तरह से हमें इसको निकालना पड़ेगा. ओके तो इसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूट से हम एस, आर, यू और ई लेते हैं तो उससे हमारा श्योर एक वर्ड है जो कि बन सकता है. उसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा. श्योर विल बी द वर्ड.
SURE श्योर, और उसमें हमें बताना है क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर वर्ड बन रहा है तो उसका थर्ड वर्ड बताओ, अगर नहीं बन रहा है तो X आंसर होगा, अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो फिर आपका M आंसर होगा। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा बन ही नहीं रहा है भाई, एक ही बनने में बहुत मुश्किल से बन रहा है। तो यहाँ पे थर्ड लेटर जो है, क्योंकि अभी तक तो फर्स्ट लेटर पूछा गया था बट अब इसमें नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया थर्ड वर्ड बताओ, तो थर्ड आपका लेटर जो है वो R है, तो R will be the right answer for this question. This has been asked in the bank PO question paper. R, S and E, then option A will be the right answer, that is R here. Now moving on to the next question, that we have your question number 272th question of the session, that if we make a meaningful word with the first, अब हमें एक वर्ड बताना है जो कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है फर्स्ट वर्ड से, फोर्थ लेटर से, नाइन्थ लेटर से और ऑफकोर्स 14th लेटर से of the word of administration, which of the following will be the third letter. अब इसमें भी आपसे थर्ड लेटर पूछा गया, नॉर्मली अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें फर्स्ट लेटर पूछा जाता था बट इसमें थर्ड लेटर पूछा गया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी थर्ड ही लेटर पूछा गया था। ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ दैट वर्ड, अब आपको बताना है। अभी तक की बोला था थर्ड लेटर बताओ, तो आपने क्या किया, शो लिखा था तो बस लेफ्ट साइड से काउंट कर दिया, बट इन्होंने बोला है आपको थर्ड लेटर तो बताना है उस वर्ड का, बट आपको वो काउंट जो थर्ड लेटर करना है वो राइट की तरफ से करना है, तो थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेशन बना दिया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, कितना भी कॉम्प्लिकेशन हो हम तो कर ही लेंगे बिकॉज हमने किए हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट है आपका ए, फोर्थ वाले की बात करते हैं सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ विल बी द ई, उसकी सॉरी आई, एंड देन नाइन्थ की बात करते हैं, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवन्थ है, ये एट्थ है और ये नाइन्थ है, नाइन्थ विल बी द आर, एंड देन 14, 10th, 11, 12, 13 एंड 14 विल बी द एन। तो पहले हम वर्ड्स को सॉर्ट करके यहाँ पे लिख देते, ए है, आई है, देन आर है एंड देन एन है, तो ये हमें मिल गया ओके वर्ड। अब इसमें पहले इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद ही हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। विद दिस RAIN रेन बन सकता है, इसके अलावा तो मुझे नहीं कोई पॉसिबिलिटी दिखती है, अगर आपको लगती है तो प्लीज़ यू कैन आंसर मी ऑन कमेंट सेक्शन है। रेन बनेगा। अब रेन में बोला गया थर्ड लेटर, अगर हम लेफ्ट से काउंट करते तो थर्ड लेटर हमारा आई होता, पर क्योंकि इन्होंने थर्ड बोल दिया है, सीधे सीधे मेंशन कर दिया, यू हैव टू काउंट फ्रॉम राइट हियर, तो 1 2 3 थर्ड लेटर आपका होगा जो वो ए होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द ऑप्शंस हियर, ऑप्शन ए इज आई एंड बी इज ए एंड सी इज एन, एंड दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ए हियर। Now moving on to the next question, that we have your question number 273 question, and the question we have is, if it is possible to make a meaningful word with the second, अब यहाँ पे बोला second letter, fifth letter and the eighth letter of the word, अभी तीन ही वर्ड बोले, of the word caretaker, which of the following will be the first letter of that word, first letter आपको बताना उस वर्ड का, पहले तो बनाओ उसके बाद बताओ ओके। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड देन एक्स विल बी द आंसर, अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है इन तीन वर्ड से तो ऑब्वियस सी बात है फिर आंसर आपका जो होगा वो आपका दैट विल बी एक्स हियर, एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी द एम विल बी द आंसर, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं तो फिर एम आपका आंसर होगा, अगर कुछ नहीं बनता है तो एक्स होगा, और अगर कुछ वर्ड्स बनते हैं तो ऑफकोर्स यू हैव टू आंसर द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट। अगर इसकी बात करती हूँ तो ये आपका बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इन इंडिया, दैट इन कॉम्पिटिशन पेपर। ऑप्शन ए है आपका टी, ऑप्शन बी है आपका एक्स, ऑप्शन सी है आपका एम। सो लेट्स गॉन थ्रू विद द वर्ड्स दैट वी हैव हियर इज द सेकेंड वर्ड आपका सी ए है, फिफ्थ वर्ड की बात करते हैं थर्ड फोर्थ, एंड द फिफ्थ वर्ड विल बी हैविंग अ टी हियर। उसके बाद फिफ्थ वर्ड की बात करती हूँ तो थर्ड है, फोर्थ सॉरी फोर एंड देन फिफ्थ, ये आ गया आपका, सेकेंड हो गया, फिफ्थ हो गया, अब एट्थ हो गया, तो सिक्स सेवेंथ एट, एट वर्ड विल बी ए ई, तो वी हैव अ वर्ड ए टी एंड देन वी हैव ई, ए टी ई, तो एट ही वर्ड फॉर्म भी करेगा वो, बट एट की जगह पे मैं अगर बात करती हूँ तो एट बन रहा है, अब एट से मैं ईट भी तो बना सकती हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ई ए टी ईट, एट भी बन गया, ईट भी बन गया, पर अब इससे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो टी ई ए भी तो बन रहा है, टी बन रहा है, तो तीन वर्ड यहाँ पे बन रहे हैं, एट, ईट एंड टी, तो तीन वर्ड बन रहा है, तो तीन वर्ड आपके पॉसिबल है। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर एक वर्ड बन रहा है तो भाई उसका सीधे फर्स्ट लेटर मुझे बता दो, अगर बोला है अगर नहीं बन रहा है, कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, तो फिर भाई उसका आंसर तो एक्स होगा, बट अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स बना रहा है तो भाई आप कैसे निकालोगे फर्स्ट लेटर, क्योंकि इसका तो ए है, इसका ई है, इसका टी है, तीनों ही वर्ड आपके स्टार्टिंग गान बन रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसका आंसर आप बताओगे एम।
ठीक है, हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी द एम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन टी, एक्स एंड एम, तो भाई टी भी स्टार्टिंग बन रहा है, एक्स तो बनेगा ही नहीं क्योंकि बन रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स, तो ये तो होना ही नहीं है। टी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बन रहा है, देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द एम हियर। ओके, दैट इज मोर देन वन वर्ड बन रहा है, इस वजह से एम विल बी द राइट आंसर हियर। Now moving on with the next question, that is your question number 274. A meaningful word starting from with A. अब एक meaningful word बनेगा जो कि उन्होंने खुद बोल दिया A से start करेगा. A is made from the first and the second and the fourth and the fifth and the sixth letter of the word contract. Which of the following is the middle term of the word? Middle term कौन सा होगा ये आपको बताना है, A से बनेगा. So let's go on through with the words we have a first word is C, the second word will be O, the fourth will be the T, and the fifth will be the R here, and the sixth will be the A here. And so हमारे पास जो word मिलेंगे C, O, T, R, and then we have A here. So here this is COTRA we have options, we have T and option B is R and option C is O here. So with this word we have to find out the word here. अगर हम इसके हिसाब से बनाते हैं तो हमें जो words मिलेंगे, the first letter, the second letter, and the fourth and the fifth letter and the sixth letter, तो we have a word contract COTRA बन रहा है. इससे जो हमारा एक ही word form बनेगा वो हमारा बनेगा, obvious सी बात है, ACTOR, actor बनेगा. Actor will be the word that will be formed here, ACTO, and then we have R here. तो अब इसमें हमारा पूछा क्या है, which of the following is the middle term of the word? Middle term 1 2 3 4 5 5 है total, तो third will be the middle word and that will be the T here. Then options A is T, B is R, and C is O. Then option A will be the right answer, that is T here, and that will be the right answer as well. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे. वो किसी भी पैटर्न में पूछेगा तो हमें उसके लिए प्रॉब्लम नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लियरली इसको पहले एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 275 क्वेश्चन ऑफ द सेशन. This we have a 275 question. A meaningful word is made if we take the first word letter लेंगे, fourth letter लेंगे, fifth letter लेंगे, seventh letter लेंगे, 10th letter लेंगे, 11th letter लेंगे, and the 12th letter of the word felicitation. Which of the word will be the fifth letter of the word from the right end of that word? एक word बनाओ भाई इतने word से, फिर fifth letter भी बताओ और बताना भी किधर से, right side से बताना है. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका यूटीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड. सो अभी हम वर्ड फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट लेटर तो हमें मिल गया एफ, उसके बाद हमें चाहिए फोर्थ लेटर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द आई. फिर हमें चाहिए फिफ्थ लेटर, दैट विल बी द सी. उसके बाद सेवन्थ चाहिए तो दैट विल बी द टी. उसके बाद 10th चाहिए तो 8 9 10 10th will be the I, again I, and then we want the next word. I के बाद 10th के बाद 11th चाहिए तो that will be the O here, और फिर 12th भी चाहिए तो ये आपका N है. तो इस तरह से हमें ये सारे मिल गए, वर्ड्स मिल गए, F I C then T, फिर I and then फिर O, फिर N, फिर S. ये मिल गया, सॉरी S नहीं मिला, ये मिल. तो आपका FICTION हमें ये वर्ड्स मिल गए हैं. तो अब इसी से हमको बनाना है, तो कोई बात नहीं, फेलिसिटेशन से FICTION मिल गया है, तो इससे हमें बनेगा जो वर्ड FICTION. देखो इसी से फिक्शन बन रहा है वर्ड, आपको ऑलरेडी सीधे सीधे दिख रहा होगा मैं जिस तरह से वर्ड को फॉर्म किया है. तो इसका फिक्शन वर्ड बन ही रहा है, FICTION, तो फिक्शन वर्ड बन रहा है. इसका पूछा गया है कि फिफ्थ लेटर बताओ, जो भी राइट से गिनेंगे 1 2 3 4 5. फिफ्थ वर्ड अगर हम लेफ्ट से गिनते हैं तो आई बनेगा, बट इस राइट से इससे गिनना है इस साइड से, तो 1 2 3 4 फिफ्थ वर्ड विद द सी है, तो उसके लिए आंसर होगा सी. लेट्स गो थ्रू विद ऑप्शन हियर. ऑप्शन ए इज सी, ऑप्शन बी इज टी, एंड ऑप्शन सी इज एन. देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज सी, एंड दैट विल बी द राइट आंसर एंड फॉर्मिंग द वर्ड फिक्शन हियर. Now moving on with the next question, that we have your 276th question of the session. The next question that we have here, 276th question, that if it is possible to make a meaningful word with the fourth letter, eighth letter, or 10th letter of the word counteract, which of the following will be the last letter of that word? If no such word can be made, give X as answer, and if
more than one such word can be made, then give M as answer. तो बोला गया है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, इससे आपको ये 4th लेटर 8th लेटर और 10th लेटर से एक फॉर्म बनाना है, वर्ड बनाना है. अगर बन रहा है, एक बन रहा है, तो उसका फिर आपको मुझे बताना है दैट देन यू हैव टू टेल द लास्ट लेटर क्या होगा अगर एक वर्ड बन रहा है. अगर एक भी लेटर नहीं बन रहा है, एक भी वर्ड नहीं बन रहा है, तो फिर उसका आंसर तो एक्स होगा. बट अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो उसका आंसर फिर जो होगा वो एम होगा. ओके, तो कोई बात नहीं. कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले चलेंगे 4th लेटर पे. 1 2 3 4, 4th लेटर हमारा एन है. फिर 8th लेटर पे बात करते हैं. 5th 6th 7th एंड 8th लेटर वी हैव ए. देन 10th लेटर 9 एंड 10th लेटर हमारा है 10. तो NAT हमें मिल रहा है 3 आपके मिल रहे हैं वर्ड. तो यहाँ पे हमें इसमें बताना है कि आपका लास्ट लेटर क्या होगा एंड वेल फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म इट. तो कोई बात नहीं, इसमें हमें ये मिल रहा है. The 4th and the 8th letter we have in the contract is NAT, and here the words that will be formed तो ANT ant बनेगा पहला, तो वर्ड E बनेगा. दूसरा वर्ड हम इसमें बना सकते हैं क्योंकि नेट तो कोई वर्ड होता नहीं, ANT एंड बनेगा. और TAN रिवर्स कर दो, टैन भी बनता है. तो 2 वर्ड बन रहे हैं क्योंकि एक वर्ड सिंगल, एक वर्ड नहीं बन रहा है, तो इस वजह से क्योंकि इसमें N बन रहा है, यहाँ पे लास्ट T है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 बन रहे हैं. अगर कोई भी लेटर ना बनता तो हम आंसर X लिखते हैं. अगर एक लेटर मिलता है तो उसका लास्ट बताते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो M होगा. तो ऑप्शंस को थ्रू करते हैं. ऑप्शंस ए है X, B इज M एंड C इज T, तो T नहीं होगा एंड दैट विल बी द आंसर विल बी द B, दैट इज योर M here. Now moving on with the next question, that is your question number 277 here. The question we have is, if it is possible to make a meaningful word with the first, with the 4th and the 7th and the 11th letter of the word interpretation, which of the following will be the 3rd letter of that word? And then more than that, अब बोला गया है कि आप फर्स्ट लेटर लो, 4th लेटर लो, 7th लेटर लो, 11th लेटर लो और इंटरप्रिटेशन वर्ड का, उसमें से आपको बनाना है. और आपको बनाने के बाद 3rd लेटर बताना है उस वर्ड का. ओके, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया राइट ऑन वर्ड बताना है, तो आप डायरेक्टली लेफ्ट ऑन वर्ड भी बता सकते हो. If more than one such word can be formed, give M will be the answer. अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो उसके लिए बोला है. और अगर कोई भी वर्ड बनता है, एक से ज़्यादा वर्ड बनता है, तो आप M आंसर दोगे. एंड द आंसर, एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, तो आप उसको आंसर X करोगे. अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो आप X आंसर करोगे. अगर आपके एक से ज़्यादा वर्ड बनता है तो आप M आंसर करोगे. और अगर सिर्फ सिंगल एक वर्ड बनता है तो आप उसका 3rd लेटर को आंसर करोगे. सो हियर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका क्वेश्चन जो है SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Now gone through with the options here. Option A is T, B is X and C is M here. So इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो let's go through the word here. पहला वर्ड आपका है यहाँ पे I. 4th वर्ड की बात करती हूँ, 2nd 3rd and 4th वर्ड विद E. 7th वर्ड की बात करती हूँ 4th 5th 6th and 7th विल बी द R वर्ड. एंड उसके बाद 11th की बात करती हूँ 8 9 10 11. 11th वर्ड हमारा T है. ओके, तो I E T R और T, ये 4 वर्ड आपके बनते हैं. IETR की बात करती हूँ अगर, तो इसमें से कोई बात नहीं, इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं. पहला तो वर्ड बनेगा आपका TIER, पहला बना आपका टायर वर्ड. उसके बाद बनता है RITE, राइट. उसके बाद बनता है TIRA, टायर. तो ये 1 2 और 3 वर्ड बनेगा भाई. तो 3 वर्ड में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि तीनों के 3rd लेटर डिफरेंट ही है. और वैसे भी एक से ज़्यादा अगर बनता है तो हम उसके लिए किसी एक का अगर सेम भी होगा तो भी नहीं बना पाएंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी वर्ड नहीं बनेगा तो वी विल राइट इट डाउन एज आंसर X. एंड अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो M आंसर देंगे. और अगर नहीं बना तो 3rd वर्ड देते, तो 3rd लेटर आंसर करते. तो हियर वी हैव एन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन A विल बी द T हियर. So here you can see that a tire, right, and tire, has been asked in the CBI question paper. So sorry, SBI question, PO question paper. So this is also an important one. So यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो M होगा क्योंकि more than one word बन रहा है. तो option A is T, B is X and C is M. So answer will be the M here. That will be the C option. Now moving on with the next question that we have here, 278th question of the session that we have to discuss here is 278 question we have, if it is possible to make a meaningful word out of the second word. बेसिकली आपको अगर सेकेंड वर्ड से बनाना हो, 4th वर्ड से बनाना हो, 5th वर्ड से बनाना हो और 8 लेटर से बनाना हो ऑफ दैट वर्ड. सो इफ इलॉजिकल वर्ड है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 3rd लेटर. 3rd लेटर कौन सा होगा? सो फॉर्म्ड. इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं तो आपका देन गिव आंसर एज गिव
मोर देन अगर वन वर्ड बताए तो आपने यहाँ पे नोटिस कर दिया है, आपको एक्स बताना है एज एन आंसर. इफ नो मीनिंग वर्ड कैन बी फॉर्म देन यू कैन राइट आउट एज द आंसर इज जेड. अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो जेड बनाओगे, जेड लिखोगे, और उसके बाद अगर आपका वर्ड एक से ज़्यादा बनता है तो आप एक्स को बनाओगे, बट अगर एक ही सिंगल बनता है तो थर्ड लेटर आपको बताना है. Let's gone through with this question. This question has been asked in the LIC question paper and that is also an important one here. So आपका LIC के में पूछा गया है, तो सेकेंड वर्ड लेटर पहले मार्क आउट करेंगे. आई है, एल है, देन ये सेकेंड वर्ड एल हो गया. फिर फोर्थ वर्ड की बात करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ विद द ओ. एंड फिफ्थ वाली बात करते हैं तो फिफ्थ विल बी द जी हियर. एंड फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट विल बी द ए हियर. तो हमारे पास जो वर्ड्स मिलेंगे एल, देन ओ, देन जी एंड देन ए हियर. तो हियर वी विल फाइंड इट आउट द वर्ड्स हियर. ऑप्शन ए है एक्स, ऑप्शन बी है जेड एंड ऑप्शन सी है आपका ओ है. सो विद दिस क्वेश्चन वी विल जस्ट फाइंड आउट the two words here that will be, that is GOAL, goal, and of course GAAOL, goal. So this were the two words that they are forming here. So अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं तो उसके लिए हमें इन्होंने बोला था कि एक्स आंसर होगा इस केस में, और अगर एक भी वर्ड नहीं बनता है तो जेड होगा, और अगर जो बनता है एक वर्ड तो उसमें थर्ड लेटर बताना है. तो दो बन रहे हैं इसमें, तो आंसर विल बी योर एक्स हियर. ऑप्शन ए इज एक्स, बी इज योर जेड एंड सी इज ओ. दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज एक्स हियर. Now moving on with the next question that we have here, 279th question of the session. The questions we have: if it is possible to make a meaningful word with the second letter, the fifth letter, and the 10th letter, and the 12th letter here of the word that is metropolitan, which of the following will be the third letter of that word? आपको metropolitan के सेकेंड, फिफ्थ और 10th और 12th लेटर से बनाना है वर्ड, इसको आपको थर्ड लेटर बताना है. अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो दैट नो सच वर्ड विल बी फॉर्म, देन आपका आंसर विल बी द एक्स हियर. अगर आपका एक से ज़्यादा वर्ड्स बनता है तो दैट आंसर विल बी द एम हियर. बट अगर सिंगल वर्ड बनता है तो उसका थर्ड लेटर आपको बताना है. Options we have is option A is X, option B is M, and option C is T here. So let's find it out the second word. Second word आपका इसका है E. फिफ्थ लेटर की बात करती हूँ तो फिफ्थ लेटर है आपका O. 10th लेटर की बात करती हूँ, 6, 7, 8, 9, 10. 10th लेटर विल बी द T. और उसके बाद 12th लेटर की बात करती हूँ N. तो हमारे पास जो वर्ड्स बनेंगे दैट वी हैव E, O एंड T एंड देन N हियर. तो ये तो हमारे पास चार वर्ड्स बन गए. इसके हिसाब से अगर हमें वर्ड निकालना है तो EOTN से हम बना सकते हैं. एक पहला मेरा बनेगा NOTE, नोट. ओके, तो NOTE, नोट बनेगा. सेकेंड वर्ड जो हमारा बनेगा दैट इज स्टोन, तो TONE, टोन. दो वर्ड बन गया, तो दो बनेंगे या दो एक से ज़्यादा बनेंगे तो उसके लिए हमारा आंसर M होना था. तो इसके लिए हम एट लास्ट थर्ड लेटर नहीं निकाल सकते, और ऐसा है भी केस नहीं है कि वर्ड भी नहीं बन रहा, तो वर्ड भी बन रहा है पर एक से ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर विल बी द M हियर. Option A is X, B is M, and C is T, and that is option B will be the right answer, that is M here. Now moving on with the next question that we have, a question number 280th question of the session. If it is possible to make a meaningful word with the third letter से बनाना है, fifth letter से बनाना है, seventh letter से बनाना है, और 10th letter से बनाना है of that word of projection, which of the following is the third letter of the word? आपको third letter बताना है उस word का. If no such word can be made, अगर कोई भी word नहीं बनता है तो answer will be the X here. If more than one such word can be made, then answer will be the M here. अगर कोई भी नहीं बनता तो X होगा, अगर एक से ज़्यादा बनेगा तो आंसर विल बी द M, और अगर एक सिंगल बनता है तो उसका आपको थर्ड लेटर बताना है. सो नाउ द वर्ड्स वी हैव थर्ड लेटर. प्रोजेक्शन में पहला थर्ड लेटर आपका O है. फिफ्थ की बात करती हूँ तो फिफ्थ विल बी द E. फिर सेवन्थ की बात करती हूँ तो दैट विल बी द T हियर. एंड अगर 10th की बात करती हूँ तो 8, 9, 10, 10 विल बी द N हियर. तो हमें जो वर्ड्स मिलेंगे वो विल बी फाइंडिंग आउट O, E, T and then we have N here. तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन A है T, ऑप्शन B है X, ऑप्शन C है M. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये बैंक 2 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. तो दिस इज नॉट दैट मच इजी एज वी आर होपिंग फॉर दैट. सो OETN के बारे में बात करती हूँ तो OETN के बाद हमारे दो वर्ड इसमें भी बन रहे हैं सेम जो अभी ऊपर बने थे, NOTE, नोट, NOTE, नोट, और हमारा सेकेंड वर्ड बनेगा TONE, टोन. तो TONE, टोन, ऐसे ऊपर में भी बन रहा था बट ऊपर में वर्ड दूसरा था, दैट इज योर मेट्रोपॉलिटन, और इसमें भी आपका दूसरा वर्ड है दैट इज वर्ड प्रोजेक्शन. तो वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मेक करने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर बनेगा. तो इन्होंने बोला था कि अगर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो एक्स विल बी द आंसर, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स बने हैं. अगर बोला था एक सिंगल वर्ड बनेगा तो आपको आंसर जो करना है दैट इज द थर्ड लेटर, बट यहाँ पे एक नहीं बना है तो थर्ड लेटर हम आंसर नहीं करेंगे. यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड बना है तो आंसर विल बी द M हियर, एंड दैट इज योर ऑप्शन A is T, X and M. That option C will be the right answer, that is M here.
Now moving on with the next question, that we have your 281th question of the session that we have. We have a 281th question of here is, if it is possible to make a meaningful word with the fourth, the seventh and the 11th and the 13th letter of the word categorization, which of the following first letter of that word, आपको बताना है कि आपका अगर आप इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेते हो, फोर्थ लेटर का, सेवन्थ लेटर का, 11th लेटर का, एज वेल एज 13th लेटर का, तो आपको कैटेगराइजेशन वर्ड से एक वर्ड बनाना है. अगर बनता है तो फर्स्ट लेटर आपको बताना है. If no such word can be made, then of course your answer will be the X here as an answer. But if more than one such word can be made, then your M will be the answer here. ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दिस हैज बीन आस्क्ड इन द बैंक पे क्वेश्चन पेपर. द ऑप्शंस वी हैव हियर इज M, X एंड T. सो विल जस्ट फाइंड इट आउट. फोर्थ लेटर देखते हैं, 1 2 3 4 4 आपका फोर्थ लेटर E है. सेवन्थ लेटर की बात करते हैं, 5 6 7 7 विल बी द 8 R here. And then we have 11th, 8 9 10 11th. 11th will be the T here. And 13, this is your O here. तो ये आपके वर्ड्स हैं. तो वर्ड्स को मैं पहले यहाँ पे सेटलाइज कर देती हूँ. E है, R है, T है, O है. ओके, दैट इज द 4th 7th 11th एंड 13th लेटर हियर. इससे हमें फाइंड आउट करना है. अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो विल बी जस्ट मार्क्ड एज एक्स विल बी द राइट आंसर. अगर आपका एक से ज़्यादा बनता है देन विल राइट इट डाउन एम एज आंसर. एंड अगर एक ही बनता है तो वी हैव टू आंसर द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड. So the now gone through with the options M, X and T. So ERTO से जो हमारा वर्ड बनेगा, ERTO से आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं TORE टोर बनाना चाहूँ तो नहीं बनेगा. ERTO से बनाऊँ और कौन से वर्ड्स में बना सकती हूँ इसमें से, तो इसमें से अगर 4th 7th 11th लेटर 13th लेटर हमने लिया है तो हमें ERTO बन रहा है, तो हम इसमें टोर बना सकते हैं पहला लेटर. ओके, and the second letter we can found form is rote here, ROTE rote. ओके, तो ये दो वर्ड्स बनेंगे. तो इस वजह से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक भी एक लेटर नहीं बना है जिसमें से मैं फर्स्ट लेटर उसका दे देती, और कोई भी ना बनता तो हम एक्स दे देते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बना है तो एम विल बी द राइट आंसर दैट दे हैड टोल्ड यू एज आंसर. if it is more than one such words that can be formed, then the M will be the right answer here. Now moving on with the next question, that we have your 282th question, and the question we have, if it is possible to make a meaningful word as well as for the first here, and for the third one, for the seventh one, from the ninth one letter of the word separation here, which of the following will be the third letter आपको बताना है उस word का, अगर हम इनका combination first, third और seventh और ninth word का लेते हैं तो. If no such word can be formed, then your give answer as X as the answer. अगर आप कोई वर्ड नहीं बनता है तो एक्स आपका आंसर होगा. और इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, देन एम विल बी द आंसर हियर. तो अगर कोई भी नहीं बनता है तो एक्स होगा आंसर. अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो एम विल बी द आंसर. बट अगर एक बनता है तो यू हैव टू आंसर द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड हियर.
इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड in the competition paper as well. I had not mentioned here, but option A is X, B is M, and C is T. So the word we can find out first letter. That first letter will be the S here. The third letter will be the P here. Seventh letter will be fourth, fifth, sixth, and seventh will be the T here, and the ninth, that is 8 and 9, that is O here. So we have a word here S P T and then O. S P T O से हम जो words form करेंगे उसमें हमारा जो वर्ड्स बनेगा दैट विल बी द पहला वर्ड जो हमारा बनेगा SPOT, हम स्पॉट बना सकते हैं. ओके, सेकेंड वर्ड वी विल फाइंड इट आउट पॉट्स हियर. सो POTS पॉट्स बनेगा. थर्ड वर्ड जो हमारा बनेगा दैट इज टॉप्स हियर, TOPS टॉप्स बनेगा. ओके, तो इस तरह से वर्ड्स बनेंगे. सो हमारे यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड बने हैं, तो क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड बनेंगे तो यहाँ पे बोला गया था कि M विल बी द आंसर. अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो X विल बी द आंसर. अगर कोई वर्ड बनता तो थर्ड लेटर विल बी द आंसर. तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड बने हैं, तो देन फॉर दैट सेक M विल बी द आंसर, दैट विल बी द B here. Now moving on with the next questions that we have here to 83rd question of the session. The question we have in each of the following question, find which one word cannot be formed from the letter of the given word. आपको बताना है, देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया cannot be formed. यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा, इस वर्ड से आपको ऑप्शंस को मैच करना है और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता इस वर्ड के थ्रू. ओके, सारे क्वेश्चंस लगभग जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं आते तब तक हमें सारे वर्ड्स में ये देखना है कि कौन सा नहीं बन सकता है. सो कारपेंटर CARPENTER कारपेंटर है, तो उसमें से ऐसा वर्ड होगा जिसमें जो ये लेटर एग्जिस्ट नहीं करता होगा इस वर्ड में, तो वो विस बात है वो नहीं बनेगा. तो लेट गो थ्रू विद ऑप्शंस है. एन है, ई बी है, सी बी है, टी बी है, ए बी है और आर बी है. तो इसका मतलब नेक्टर तो बनेगा, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता ऑप्शन. कारपेट की बात करते हैं तो सी है, ए बी है, आर बी है, पी बी है, ई बी है और टी बी है, तो ये भी बनेगा. इसका मतलब ये जो पेंटर वर्ड है यही नहीं होगा, बट लेट वी विल जस्ट फाइंड इट आउट. ऑप्शन पी है, ए बी है, आई है, आई नहीं है कारपेंटर में, और यहाँ पे है आई, तो आई नहीं है, इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी मेड, एंड दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज पेंटर हियर. Now moving on with the next question, that is your question number 284th question of the session. 284th question, the word we have is teachers, TEACHERS teachers. and ये क्वेश्चन की बात करती हूँ तो इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शंस वी हैव चेयर, रीच एंड चीयर. तो बेसिकली चेयर और रीच आपका वर्ड है, तो इसमें हमें मैच आउट करना है. जो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट विल बी द राइट आंसर. सी की बात करते हैं. सी, यहाँ पे सी है, एच भी है, ए भी है, आई नहीं है, तो आर भी है, बट आई ही नहीं है, तो फिर वी तो यही एक वर्ड होगा जो आपका नहीं फॉर्म करेगा. बट क्योंकि आगे का गो थ्रू कर लूँ, हो सकता है उसमें भी ऐसे वर्ड्स हों जो बिल्कुल भी नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं वर्ड्स आ रहे हो. आर है, ई भी है, ए भी है, सी भी है, एच भी है, तो ये बनेगा दिस विल बी फॉर्म. एंड चेयर, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट बी फॉर्म है तो ऐसा वर्ड जो नहीं बन सकता, तो दैट विल बी चेयर अभी तक के. सी, फिर सी भी है, एच भी है, ई एक है, ठीक है, फिर एक सेकेंड ही है, आर और आर भी है, तो चेयर ये भी बनेगा. इसका मतलब है जो हमने पहले टिक कर लिया था चेयर आंसर, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, कि दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड टीचर हियर. Now moving on to the next one, 285th word, and that we have is consolidate, CONSOLIDAT, consolidate. Options देखते हैं, slain, lentil and condole. तो basically we'll just check it out the words here. S है, L भी है, A भी है, I भी है, N भी है, तो ये वर्ड तो बनेगा, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा इसके लिए. L, लेट्स सी, L है, ठीक है, E भी है, N भी है, T भी है, I भी है, एंड L अगेन L नहीं है, एक ही L है यहाँ पे, दो L है ही नहीं, तो ऑब्वियस ये बात है ये नहीं होगा. तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये राइट आंसर होगा, बट वी विल मूव विद द नेक्स्ट वन हियर. वी कैन जस्ट चेक दैट फर्स्ट. एंड दिस इज योर सी है, ओके, ओ भी है, N भी है, एंड डी भी है, देन ओ भी है, ओके, दो हो गए. एल भी है, एन ई भी है, तो कंसोलिडेट भी ये भी होगा. इसका मतलब है जो आंसर राइट होगा वो लेंटिल होगा, क्योंकि ये आपका कंसोलिडेट वर्ड से नहीं बनेगा.
Next, moving on with the next question, that we have your 286th question, and the question we have form uniformity, UNIFORMITY, uniformity. ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, यू कैन जस्ट डू इट अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं. तो वर्ड वी हैव टाइनी, टर्न एंड रेंट. लेट्स गॉन थ्रू विद दैट. टाइनी का टी है, आई भी है, एन भी है, वाई भी है. तो ये वर्ड तो बन रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट दैट वर्ड दैट इज नॉट फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड. तो टी भी है, ओ भी है, आर भी है, एन भी है. तो ये भी वर्ड बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि दैट वी हैव टू फाइंड आउट द कैन नॉट बी फॉर्म्ड. यहाँ पे देखते हैं आर है, ई नहीं है, ई नहीं है, इसका मतलब है दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. रेंट आपका जो होगा वो आपका नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे. So we'll just find it out the next word that we have here, 287th word, and the word we have is kaleidoscope. So CALEIDOSCOPE. Options देखते हैं, पैकेट, पैडलॉक एंड स्केल. सो जस्ट गॉन थ्रू द वर्ड्स हियर. पी है, ए भी है, सी भी है, के भी है, ई भी है, एंड देन टी, वी डोंट हैव टी. तो ये वाला वर्ड जो है वो नहीं बनेगा, तो दैट विल बी द राइट आंसर. बट वी विल मूव फर्दर ऑल्सो. इसको एक बार टिक कर लेते हैं. लेट्स गो थ्रू विद अनदर ऑप्शंस हियर. पैडलॉक, पी है, ए भी है, डी भी है, एल भी है, ओ भी है, एंड देन सी वी हैव सी, एंड देन वी हैव के. तो ये बन रहा है, इसका मतलब है ये तो नहीं होगा. स्केल की बात करती हैं, एस सी ए एल ई, स्केल भी है, तो ये भी बनेगा. इसका मतलब है जो नहीं बनेगा वो पैकेट नहीं बनेगा. Next, moving on to the next question that we have here is question number 288 question, and that RECREATION, recreation, जो कि recreation वर्ड जो आपका असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन ए है आपका एक्शन, रेफर एंड रैशन. एक की बात करती हूँ, ए एंड देन सी, फिर TION. तो एक्शन तो है, तो फिर ये तो बनेगा, बट ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वी हैव टू मार्क इट आउट हियर कि जो नहीं बनेगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड हियर. सो सेकेंड वाले का देखते हैं. आर है, ओके, ई है, ई भी है, देन वी हैव एफ, पर यहाँ पे एफ कहीं पे भी नहीं है, तो आंसर ये होगा रिफर. बट लेट गन थ्रू विद अनदर वन ऑप्शन ऑल्सो. आर है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है. तो इट मीन्स रैशन भी बनेगा, इट मीन्स रेफर नहीं बनेगा, क्योंकि एफ नहीं है यहाँ पे. ओके, दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट वन एज वेल एज, क्योंकि ये आपका असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है. Now moving on with the next one that we have your 289, that is supreme possible, that is SUPR, super impossible बोल सकते हो, that is SUPERMIMPOSABLE. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन है पॉसिबल, स्पायर एंड रेप्टाइल. तो लेट्स गो थ्रू विद ऑप्शंस हियर. पी है, ओ भी है, एस एक है, एस और दूसरा भी एस है, देन आई भी है, बी भी है, एल भी है, और ई भी है. इसका मतलब पॉसिबल बन रहा है, बट यहाँ के लिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें वो वर्ड बताना है जो नहीं बनेगा. एस है, पी भी है, आई भी है, आर भी है, और ई भी है. तो स्पायर भी बन रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वी हैव टू आंसर द कैन नॉट बी फॉर्म्ड. आर की बात करते हैं. आर है, ई भी है, पी है भी है, टी नहीं है यहाँ पे, तो पर टी यहाँ पे है, तो रेप्टाइल में आपका सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड सुपर इम्पॉसिबल है. Now moving on with the next word that we have your 290th word, and that is your commentator. COMMENTATOR, commentator, जो कि आपका CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, and that is also an important one, an important paper of competition here. Options we have cosmos, common, and of course moment. तो cosmos देखेंगे, CO एंड देन एस नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे है. इसका मतलब यही हमारा होगा आंसर, जो कि नहीं बन सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड है. बट लेट गॉन थ्रू विद अनदर वन. COMM ओ एंड देन एन कॉमन है, बन रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा. मोमेंट की बात करते हैं. MOMENT, मोमेंट बन रहा है, तो ये भी नहीं, ये भी बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता आंसर. द आंसर विल बी द कॉस्मोस यार, क्योंकि यहाँ पे एस अवेलेबल नहीं है. Now moving on with the next one that we have your 291th question of the session that we have to discuss here is
Here 291th word we have is miraculous, that is miraculous. Miraculous से हमें दिखाना है लोकस, लोलेस और स्कार में से कौन सा नहीं बनता है. एल है, ओ भी है, सी भी है, यू भी है और एस भी है. तो ये तो बन रहा है, बट ये आंसर नहीं होगा. दैट यू हैव टू आंसर द वर्ड दैट इज नॉट फॉर्म्ड. सोलेस की बात करती हूँ. एस है, देन ओ है, ओ भी है, एल भी है, ए भी है, सी भी है एंड ई नहीं है. तो ई नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा जो कि नहीं बन पाएगा. बट क्योंकि फॉर द कंफर्मेशन वी विल मूव विद द नेक्स्ट वर्ड एज वेल. स्कार एस है, सी है, ए है, आर है, तो स्कार होगा. इसका मतलब है सोलेस विल बी द राइट आंसर. दैट कैन नॉट बी फॉर्म विद द वर्ड ऑफ मेराकुलस हियर. 292th वर्ड की बात करती हूँ. दैट इज रीजनेबल. रीजनेबल एक वर्ड है, रीजनिंग पढ़ रहे हो भाई, और ये आपका एसएससी के क्वेश्चन कंपटीशन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन है नोबल, बोन्स एंड ब्रेन. नोबल NOBLE, नोबल बन रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता. बोन्स की बात करें, BONE एंड देन एस, तो बोन्स बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता. अब आते हैं ब्रेन के बारे में. BRA एंड यहाँ पे आई नहीं है कहीं पे, तो ये आई नहीं है, इसका मतलब है ब्रेन विल बी द राइट आंसर, जो कि दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद द वर्ड रीजनेबल हियर. And this is an important question because this has been asked in the SSC competition paper. Now moving on with the next word that we have, your 293rd word that we have to discuss here is, that is tribunal. Tribunal में triple Latin और brain देखना है. TRIBB then LL and then we don't have E here. तो E नहीं है, इसका मतलब है डायरेक्टली हमें पता है ये आंसर होगा, बट वी मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन ऑल्सो टू कंफर्म दैट. L है, A है, T है, I है, N है, लेटिन है, इसका मतलब है ये नहीं होगा. ब्रेन BRAIN ब्रेन है, तो ऑब्वियस बात है ये भी नहीं होगा, बट ये क्योंकि बन रहा है. वी हैव टू आंसर दैट कैन नॉट बी फॉर्म, दैट इज ट्रिबल हेयर एंड दैट इज ऑप्शन A here. Next, moving on the next question, that is question number 294 here. Another word we have is temperament. Temperament is a word that has been asked in the SSC competition paper, and that is also an important word, and that is important question as well. So we have to just match it out with a tenter, tester or petter. So let's go through with that. Tenter की check करेंगे, TENTER, तो बन रहा है टेंटर, तो ये बन रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं. टेस्टर की चेक करते हैं. TE where we have S नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है यही होगा वर्ड, जो कि that cannot be formed with the word of temperament. बट थर्ड वर्ड को रीचेक करना पड़ेगा एक बार. PETER, so PETE and then R, better हो गया, तो इसका मतलब ये भी बन रहा है, but that will we have to answer that cannot be formed, and the word we have is tester here. Now moving on with the next word that we have here 295 a word, and that is knowledge here. Knowledge की बात करते हैं, तो we have a word wedge, clean, go down, so we just match it out. WEDGE, तो ये बन रहा है, इसका मतलब है ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि वी हैव टू आंसर द वर्ड विच इज नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, that is not formed with the word given. So that clean, or we have to check it out, KLEE and then we have N, तो clean भी बन रहा है, इसका मतलब that is not the answer. गो डाउन की चेक करती हूँ. G है, फिर O है गो, और फिर D है, फिर O चाहिए, पर O यहाँ पे दो नहीं है, एक ही है, तो ये नहीं मिलेगा. Go down will be the right answer because that cannot be formed from the word knowledge here. Now moving on to the next word that we have your 296th word, that is contemporary. Contemporary word जो है ये आपका central exercise के question paper में पूछा गया, and that is also an important word. The words we have to match it out is carpenter, company and parrot. So we'll just find it out. Carpenter, CARPEN, फिर TE देन वी हैव R. तो यहाँ पे दो R यूज हुए हैं, बट यहाँ पे पूरे टेम्पररी में एक ही R है, नहीं एक R ये भी, एक R ये भी है, तो इट विल बी फॉर्मेट. तो यहाँ पे C है, फिर A है, देन वी हैव R, उसके बाद फिर है C हो गया, A हो गया, R हो गया, P हो गया, फिर E हो गया, देन वी वांट N भी हो गया, कारपेन एंड देन T चाहिए, T भी हो गया, फिर अगेन हमें ई चाहिए, ई हो, ई नहीं चाहिए, अगेन ई है ही नहीं, दो ई है ही नहीं, एक ही ई है, तो इसलिए यहाँ पे ई की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा हो गई. तो यहाँ पे कारपेंटर विल बी द ऑड वन आउट, जबकि नहीं बन सकता. कारपेंटर कैन नॉट फॉर्म विद द वर्ड कंटेम्प्रेरी, बट फॉर द कंफर्मेशन वी विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस टू ऑल्सो. COMPANY, सो COM, that P, फिर A and then we have N
एंड देन वी हैव वाई। तो कंपनी हो गया, ये फाइंड इट और हो रहा है बट ये आंसर नहीं होगा। पैरट की चेक करते हैं, पी है, ए है, ए एंड देन आर, then again R, then O and then T. तो parrot भी form हो रहा है, but we have to answer the question that that word that had not be formed and that carpenter is not able to cannot be formed with the word contemporary here. Next word we have is your 297 word and the word we have is refrigerate. Refrigerate is a word and हमें check करना है retter, regenerate और regret. तो option R E T E R, R E TER है, तो ठीक है ये बन रहा है बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको दैट कैन नॉट बी नॉट फॉर्म्ड, दैट वी हैव टू आंसर हियर। अब रीजनरेट की बात करते हैं, RE फिर GE, यहाँ पे N नहीं है, यहाँ पे N चाहिए बट यहाँ पे N कहीं पे भी नहीं है क्योंकि ये रिफ्रिजरेट है तो यहाँ पे रीजनरेट है, तो N नहीं चाहिए, N यहाँ पे है नहीं, तो दैट कैन नॉट बी फॉर्म। रीजनरेट इज नॉट दैट वर्ड, दैट इज अ वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म बाय द रिफ्रिजरेट। Now seeing with the third word here, the third option, regret, REGRET, regret। तो ये obvious बात है फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो regenerate होगा, that is the word that cannot be formed from the word refrigerate। Now moving on with the next question, that we have your question number 298th question of the session। This is the question 298 question and that we have is paraphernalia, that is PARAPHERNALIA, and this has been asked in the CBI question paper and the options we have is renal, praise and Raphael। R देखते हैं, renal के लिए चेक करते हैं R, then we have E, then we have NAL, renal हो गया। उसके बाद हमें चाहिए, ये तो बन रहा है तो ये तो नहीं होगा, praise चेक करेंगे, P है, फिर R है, फिर A है, I है and then we want S यहाँ कहीं भी नहीं है, तो the place is the word that cannot be formed from the paraphernalia। and raffle के बारे में चेक करते हैं, RA फिर PHE and then we want L here, then it is L, तो ये भी बन रहा है। इसका मतलब जो word जो नहीं बनेगा that is praise, praise is not from this word and this has been important question because this has been asked in the CBI question paper as well। Now moving on to the next word that we have, your 299th word we have is that obstetrician। तो obstetrician OBSTETRICIAN, तो word हमारे पास है siren, retain and terminate। तो termite सॉरी, तो siren का चेक करेंगे, SIR then E and then N, तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं आंसर। रिटेन का चेक करेंगे तो वी हैव अ वर्ड RET and then we have AI and then N, तो ये भी बन रहा है पर ये आंसर होगा नहीं। टर्माइट की चेक करेंगे, TER then we want M यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो टर्माइट में M नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन C will be the right answer। टर्माइट is that word that is not a form with the word that has been given here। Now moving on to the next question that we have, your 300th question of the session। The word we have is UNCONSCIOUS, unconscious, and that is has been asked in the word in the competition paper of SSC, and that is also an important question of the session। Options we have nose, sun, coin, so let's see it with the nose here, that is NOS and then we want E यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब पहला ही word जो nose है that is the that cannot form from the word unconscious। अब यहाँ पे sun का चेक करते हैं, SO and then when N sun हो गया। coin की चेक करते हैं, COINN, coin भी फॉर्म हो रहा है तो इसलिए ये नहीं होगा राइट आंसर, आंसर विल बी द nose here। Now moving on with the next word that we have, your 301th word, that is turbulence, TURBULENCE। वर्ड है हमारे पास ब्लू, BLUE, ब्लू, तो ये फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। CART, कार्ट, A यहाँ पे चाहिए, A है ही नहीं, तो that will be कार्ट is the word that would not be found, that cannot be found for the word turbulence here। रेंट का चेक करते हैं, RENT, rent here, so this is also the word that is formed and that cannot be the answer here। Next is your 302th word and that word is tranquility। This is the important word, this has been asked in the SSC question paper and that is also an important word here। So we'll just match it out the word quilt here, QUILT, quilt फॉर्म हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। ट्रेन का चेक करेंगे, that is TRA फिर I and then N भी फॉर्म ये भी हो रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। then we have a triangle,
TRIAN, देन वी वांट जी, जी यहाँ पे है ही नहीं, तो जी आपका ट्रायंगल आपका जो होगा दैट इज द वर्ड दैट कैन नॉट फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ट्रैंक्विलिटी हियर. Now moving on to the next one that we have your 303th question, that we have INTER and ATIONAL, international, terminal, oriental, and later we have to see the words. टर्मिनल के लिए चेक करेंगे TER, देन वी वांट M यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यही terminal is that word that cannot be from the word international here, but we'll go on through with the another next words also. Oriental, that is ORIENTAL, so we have oriental here. लेटर की चेक करेंगे LATTER, तो ये लेटर भी वर्ड है, but that is not the answer. Answer will be the terminal. Terminal is that word that cannot be formed from the word international here. Now moving on with the next question, that is the question number 304 here, that is organization. Organization word है जो कि आपका है, आपका assistant grade के question paper में पूछा गया है, and that is an important word of the session as well. So words we have is that is grant, recognize and nation. तो just match it out. grant को check करेंगे, GRANT grant है, पर ये नहीं हो सकता because we have to find that word that is not formed with the word organization. recognize check करेंगे, that we have R here, okay, R, and then we have E हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो E से ही हमारा ये वाला जो वर्ड रिकॉग्नाइज है दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि E मिसिंग है ऊपर. नेशन चेक कर लेते हैं, NATION नेशन है, तो इसका मतलब रिकॉग्नाइज इज दैट वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हियर. Now moving on with the next word, that we have your 305 word of the session that we have to discuss here. So this is your 305th question, and the question is variegated, VARIEGATED, variegated. Words we have travel, trade and great. So travel के लिए TRA, and then we want V, then we want E है, और फिर हमारे पास L नहीं है यहाँ पे, तो L will be that, travel will be that word that cannot be formed from the word variegated here. ट्रेड को चेक करेंगे, दैट इज TRADE, ट्रेड, तो ये बन रहा है. ग्रेट का चेक करेंगे, GREAT, ग्रेट, तो बन रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारा नहीं बन रहा है ट्रैवल, ट्रैवल इज नॉट फॉर्म्ड विद द वर्ड वेरिगेटेड हियर. Now moving on with the next question, that you have 306, that is dissemination, DISSEMINATION. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. ऑप्शंस वी हैव इंडिया, एक्शन एंड मेंशन. इंडिया को चेक करेंगे, INDI, देन वी हैव इंडिया, तो बन रहा है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं होगा. एक्शन को चेक करेंगे, A, देन वी हैव वांट C यहाँ पे है ही नहीं, तो C पे ये आपका नहीं हुआ, दैट मीन्स एक्शन इज दैट वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म विद द वर्ड डिसेमिनेशन. बट थर्ड वर्ड को भी चेक करेंगे, दैट इज मेंशन हियर, MEN and then TION, तो मेंशन बन रहा है, इसका मतलब है एक्शन इज दैट वर्ड that could not be formed from the word dissemination. 307th वर्ड के लिए बात करते हैं, दैट इज क्रीडेंशियल. क्रीडेंशियल के लिए ऑप्शन है डेंटल, क्रिएट एंड क्रीम. सो डेंटल के लिए चेक करेंगे, DENTAL, डेंटल बन रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं. क्रिएट के लिए चेक करेंगे, दैट CRE, then we have A, T and then E, तो क्रिएट भी बन रहा है, इसका मतलब ये वर्ड भी नहीं होगा हमारा आंसर. The third word is cream here, that is CRE, then we have A and then M यहाँ पे कहीं नहीं है, तो M नहीं है, इसका मतलब है कि cream is that word that cannot be from the word credential here. Now moving on to the next one that we have here is your 308th question of the session, that is a reprimand, that is REPRIMAND, reprimand. ये question जो है वो आपका SSC के question paper में पूछा गया है, that is also an important question of the session. And the word we have is your MUNDANE, mundane, repair and maiden. So mundane को चेक करेंगे, mundane है यहाँ पे M and then we have on U यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब है ये वाला वर्ड जो है वो नहीं बनेगा. But let's go through with the next one here just to check it out. Repair,
word REP, then we have A, then we have I, then we have R. तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा. Midden की चेक करते हैं, MAIDE and then we have N, तो ये भी बन रहा है. इसका मतलब है जो word नहीं बनेगा that is your mundane. Mundane is that word that cannot be formed from the word reprimand. Next question that we have, your question number 309, and the word we have is collaboration. COLLABORATION. Next, checking out the word collaboration here. COLORATION, तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर हमारा होगा नहीं. ब्रिटेन को चेक करेंगे, BRIT देन A एंड देन फिर हमें अगेन आई चाहिए और यहाँ पे 2 आई है नहीं, तो इसका मतलब है ब्रिटेन इज दैट वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कोलैबोरेशन हियर. देन रोबोट को चेक करेंगे, ROBOT, तो रोबोट हमारा जो है दैट विल बी द राइट, दैट विल कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कोलैबोरेशन, तो इसलिए ब्रिटेन इज दैट वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द कोलैबोरेशन हियर. Next, moving on with the next word that we have your 310th word, and the word we have is prognostication, that is PROGNOSTICATION. And this has been important question because ये आपका SSC के question paper में पूछा गया, that is an important one as well. Spitoon, start and Röntgen, then Spitoon को check करेंगे, SPI and then TO and then O and then we have and Spitoon बन रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा because we have to find out that word that cannot be formed. Start को check करेंगे तो start ST, then we have A and then we have R and then we have again T, तो start भी बन रहा है, इसका मतलब ये word नहीं होगा. Röntgen को check करेंगे, Röntgen RON and then we have T, then we have G, then we want E यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब है Röntgen is that word that cannot be formed from the word prognostication. Next one we have your word 311th word, and the word we have is department. Department word है. Words we have permit, enter, tempo. Permit को check करेंगे, P, then we have E, we have R and then we have M and then we have I, we want I but I यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब है कि ये वाला word जो होगा वो आपका that cannot be formed from the word department here. But which are another one that is enter here, तो ENTE and then R, enter बन रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा. टेम्पर चेक कर लेंगे, TEM, it is TE and then we have M and then P then E and then R, तो टेम्पो भी आपको नहीं, this is a formed word, तो जो आपका नहीं बन रहा है that is permit is that word that cannot be formed here from this word, and this will be the word that is not existing and that cannot be formed from the word department here. Now moving on with the next word that we have here is, here we have 312th question, that is disappointment, that is DISAPPOINTMENT. So disappointment, that is, we have, this has been important question because this has been asked in the SSC question paper as well. So we have an option tenement, point and ointment, so just gone through with that. TEN and then we have A and then we have M, then we have E here and then we have again M and then we have a T. तो टेनामेंट की बात करती हूँ, T है, यहाँ पे हमें 2 T चाहिए, 2 T मिल गया, फिर एक 2 E चाहिए मुझे, यहाँ पे एक E ये है और अगेन सेकेंड ई नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सेकेंड ई, तो ऑब्वियसली बात है यहीं पे हमारा स्विच हो जाएगा, एंड दैट इज द वर्ड टेनामेंट विल बी दैट वर्ड दैट इज नॉट फॉर्म्ड विद द फॉर्म वर्ड डिसअपॉइंटमेंट. पॉइंट को चेक कर लेते हैं, POINT पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है. ऑइंटमेंट को चेक कर लेते हैं, OIN एंड देन वी हैव TMENT, ऑइंटमेंट भी मिल रहा है, तो वर्ड जो नहीं बन रहा है वो टेनामेंट नहीं बन रहा है, एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन एज वेल. Now moving on with the next question, that we have your question number 313, and that is questionnaire, that is QUISTIONNAIRA, and the words of option we have is questor, Q and quinate. तो क्वाइस्टर के बारे में QUESTO and then we have R, तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा. फिर सेकेंड वर्ड है Q, that is QUE and then of course U, we will find it out, U again U दूसरा है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये वो वर्ड है. क्यू एक ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चनेयर से नहीं बन रहा है. नेक्स्ट इज जो क्यूनेट के लिए चेक कर देते हैं, QU देन वी हैव I एंड देन वी हैव N देन वी हैव A एंड देन वी हैव T हियर एंड देन वी हैव E हियर, तो ये भी बन रहा है, इसका मतलब है Q इज दैट ओनली वर्ड दैट इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चनेयर हियर.
Now moving on to the next one, that we have your 314th word of the session, and the word we have is pharmaceutical, that is PHARMACEUTICAL, pharmaceutical. This is an important question because this has been asked in the CBI question paper, and that is an important one as well. Option है practice, that is a metric, and then we have a critical here. Practice की बात करते हैं, R, then we have R, and we have A, then we have T C, then we T I, and then we have C, and then we have E here. तो practice बन रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा. Metric की बात करती हूँ, MET, then we have R, and then we have I, and then we have C, तो ये भी नहीं बनेगा. उसके बाद आता है critical की, तो CRIT, and then we have again I यहाँ पे हमें मिल ही नहीं रहा. नेक्स्ट सेकेंड I, तो that critical will be that word that cannot be formed from the word pharmaceuticals here. Now moving on to the next word, that we have your 315th word. We have a word that is your adulteration, ADULTERATION. The options we have is return, relation, and retail. So let's go through with the return word. R के बाद हमें चाहिए E, then we have on T, then U we have here, and R भी है हमारे पास, एक R है ये, बट सेकेंड R हमें चाहिए, तो सेकेंड R नहीं है, तो इसका मतलब रिटर्न इज दैट वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एडल्टरेशन. बट सेकेंड चेक करती हूँ रिलेशन. रिलेशन के लिए चेक करती हूँ RE, देन वी वांट LATION, तो रिलेशन तो बन रहा है. रिटेल के लिए चेक करते हैं RETAI, एंड देन अगेन L, तो रिटेल भी बन रहा है, एंड दैट रिटर्न विल बी द आंसर. दैट रिटर्न इज दैट वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड एडल्टरेशन हियर. Next the word we have is 316 word, and that is endeavor, ENDEAVOUR, endeavor, and that is the word that is important because this has been asked in the SSC question paper, and that is also important word ever. And where we have an option devour, drown, and drove. तो devour के लिए चेक करेंगे, so we have DE, then we have VOUR, तो devour है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा. drown के लिए चेक करेंगे DRO, फिर W चाहिए, W यहाँ पे है नहीं, तो drown एक ऐसा वर्ड है जो कि इससे फॉर्म नहीं हो सकता. and gone through with another word that is drove here, that is DRO, and then V, and then E, तो drove भी बन रहा है. इसका मतलब है जो नहीं बनेगा वो drown नहीं बनेगा. drown is that word that cannot be formed from the word endeavor here. Next is the 317th word, and that is intelligence. Intelligence जो word है वो आपका option A है. Insight, gentle, and cancel. तो insight, gentle, and cancel, just gone through with that only. IN, then we have C. C we don't have there, C here. Then we have I, and then we have a T. Okay, so and then we have E. तो inside तो बन रहा है, इसका मतलब ये तो word नहीं होगा, जो कि नहीं बनेगा. Gentle की बात करते हैं, GENTLE, तो बन रहा है ये भी, तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट कैंसिल चेक करेंगे, तो C, देन वी हैव C के बाद हमें चाहिए A. अब हमारा यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कैंसिल एक ऐसा वर्ड है जो कि नहीं बनेगा इंटेलिजेंट वर्ड से, इंटेलिजेंस से. नेक्स्ट वी हैव ए 318th वर्ड. वी हैव thermolysis, THERMOLYSIS, thermolysis. This is an important question because this has been asked in the SSC question paper, and that is an important question of the session as well. So thermolysis जो word है, lotus, loiter, and loris. So just check it out. lotus देखेंगे, LOOT, देन वी वांट यू यहाँ कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब है ये लोटस एक ऐसा वर्ड है जो कि नहीं बनेगा. लेट्स गो थ्रू द अनदर ऑप्शंस, दैट इज लाइटर हियर, LOITER, लाइटर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा. लॉरिस को चेक करेंगे, LORIS, तो लॉरिस भी बन रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा. तो आंसर विल बी योर ऑप्शन ए, दैट इज लोटस हियर. तो क्लास आज के लिए तो इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स. Please like, share, and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. तो अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने बोला था कंप्लीट कर दूंगी आज, बट आज नहीं कंप्लीट करूंगी बिकॉज ऑलरेडी मोर देन 1 hour चला है क्लास हमारा. नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली विल कंप्लीट दैट फॉर श्योर, एंड देन विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास कमिंग क्लासेस. सो होपफुली दिस विल बी द एंड ऑफ दिस क्लास. एंड इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है. मैंने क्या ऑलरेडी डिवाइडेड ही होती है आपकी 2 पार्ट्स में, जिसमें आपका रीजनिंग में पार्ट ए और पार्ट बी से है. पार्ट ए जो है वो भी आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि आपका एक जनरल मेंटल एबिलिटी है और एक लॉजिक रीजनिंग पार्ट में डिवाइडेड है.
जनरल मेंटल एबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लासेस से, जिसमें हमने एनालॉजी टॉपिक कवर अप किया है, क्लासिफिकेशन किया है, सीरीज कॉम्पिटिशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, ब्लड रिलेशन किया है, पजल टेस्ट किया है, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग किया है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट किया है, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में होपफुली वी विल कंप्लीट दैट। उसके बाद जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वो नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस करेंगे, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, असर्शंस एंड रीजंस, सिचुएशन रिएक्शन टेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ स्टेटमेंट भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फॉर द जनरल मेंटल एबिलिटी को तब हम कंप्लीट करेंगे जब वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पार्ट सेक्शन 1 जो कि हमने जनरल मेंटल एबिलिटी पार्ट 1 में डिवाइड किया, सेक्शन 2 जो हमारा होगा लॉजिक रीजनिंग का होगा, जिसको लॉजिक स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट assumption, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेरिवेशन कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट, मिसलेनियस लॉजिकल पजल्स वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फिर ये आपके टोटल 20 टॉपिक्स आपके जनरल मेंटल एबिलिटी में है, 9 टॉपिक्स आपके लॉजिक रीजनिंग में है जो कि पार्ट 1 वर्बल रीजनिंग का पार्ट आता है। उसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे जो कि आपका लॉजिक रीजनिंग के दैट इज अ पार्ट ऑफ 2 दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे आता है। उसमें भी हमारे 18 टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली है जिसमें हम सीरीज डिस्कस करेंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड इमेज, कंप्लीशंस ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स, trigonometrics, पेपर फोल्डिंग, paper cutting, rule detection, grouping of identical figures, cubes and dice, dot situation, constructions of squares and triangles, figure formation and analysis, and we will lastly discuss about the practice question paper also, that will discuss that those question that has been asked in the question paper at once. So just अभी तो मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रही हूँ 1 2 3 करके, अभी 10 टॉपिक पे पहुंचे। वहाँ पे जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन टेस्ट पे तो उसमें सारे ही आपके क्वेश्चंस होंगे जो भी हमने जितने भी डिस्कस कर लिए होंगे टॉपिक, सारे ही लगभग 50 टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर लेंगे, उससे मोर देन 50, तो उसमें आपके कॉम्बिनेशंस होंगे सारे क्वेश्चंस के, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे होपफुली। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।